بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں وائس عالم چینل۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج میں لے کر آیا ہوں آپ لوگوں کے سامنے صلاح الدین ایوبی اور ایک قاضی کا واقعہ۔ میرے پیارے دوستو، ہماری اس ویڈیو کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اسے آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بآسانی پہنچتی رہے۔ میرے محترم ناظرین کرام، ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا جس کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا، سفید داڑھی، سر پر سفید پگڑی، اور انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو خواب میں حکم دیا کہ فلاں جگہ ایک قاتل کی سزا بھگتنے والا ایک نوجوان موجود ہے، نوجوان کو رہا کر دیا جائے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بزرگ کو فرمایا، محترم اس نوجوان کا نام کیا ہے، میں اس کو کیسے پہچانوں؟ تو سفید داڑھی والے بزرگ نے فرمایا، اس نوجوان کے ہاتھ پر ایک چمکتا ہوا تمہیں ستارہ نظر آئے گا اور وہ ستارہ سلطان کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا آپ اس نشانی سے اس نوجوان کو پہچان لیں۔ اور بزرگ محترم نے سلطان کو یہ حکم دیتے ہی سلطان کے خواب سے غائب ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی گھبراہٹ سے آنکھ کھل گئی اور سلطان نے اسی وقت بستر سے اٹھ کر پانی کا گلاس پیا اور سوچنے لگے کہ آخر ایک قاتل کے پیچھے کیا راز ہے کہ اس کو ایک بزرگ رہا کرانے کا حکم دے رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی وہ رات پریشانی کے عالم میں گزری۔ صبح ہوئی، سلطان صلاح الدین ایوبی نے نماز ادا کرنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے گھوڑے پر سوار سیدھا اسی جیل میں پہنچ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جنرل کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اس جیل میں کتنے قیدی ہیں جو قتل کے جرم میں سزا بھگت رہے ہیں؟ تو اس جیلر نے کہا، حضور، اس جیل میں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے قیدی موجود ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، ان تمام قیدیوں کو ایک ایک قطار میں کھڑا کر دو۔ سلطان کے حکم پر جیلر نے اس وقت قتل کے جرم میں سزا بھگتنے والے قیدیوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک ایک کر کے تمام قیدیوں کے ہاتھوں کو دیکھا، لیکن کسی قیدی کے ہاتھ پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا نشان نظر نہ آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس جیلر سے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور قیدی ہے جو قتل کے جرم میں سزا گزار رہا ہو؟ تو اس نے کہا، حضور، ایک ایسا قیدی ہے جس کو چند دن بعد پھانسی ہونے والی ہے اور وہ بھی قتل کے جرم میں اس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی خود چل کر اس نوجوان کے پاس گئے تو وہ نوجوان زندان میں ایک دیوار کے ساتھ اطمینان سے بیٹھا تھا، اسے جیسے سزائے موت نہیں بلکہ رہائی ہونے والی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے میں اتنا نور تھا کہ سلطان حیران ہو گیا کہ آخر ایک قاتل کے چہرے پر اتنا نور کیسے آ سکتا ہے۔ پھر سلطان نے اس کے ہاتھ کی پچھلی طرف دیکھا تو ستارہ چمک رہا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے آسمان کی طرف دیکھا اور جب اس کے ہاتھ پر دیکھا تو سلطان کو چمکتا ہوا ستارہ دکھائی دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان مسکرانے لگے اور کہا، جیلر صاحب، اس نوجوان کو میری عدالت میں حاضر کرنا۔ اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاضی صاحب کو بھی اپنی عدالت میں بلا لیا، جس قاضی نے اس نوجوان کو سزائے موت کی سزا سنائی تھی، اور اس نوجوان کو بھی سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اے نوجوان، بے شک تمہیں ایک قتل کے جرم میں سزائے موت سنائی گئی، لیکن ایک حیران کن بات یہ ہے کہ گزرتا رات میں نے خواب دیکھا جس میں ایک بزرگ جس کا چہرہ نور سے بھرا ہوا تھا، اس نے آپ کی رہائی کا حکم دیا۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر تمہاری ایسی کون سی نیکی اللہ کو پسند آ گئی، یا تم نے ایسا کون سا نیک کام کیا جس سے تمہیں قتل کرنے کے بعد بھی رہا کرنے کا حکم دیا گیا۔
تو वह नौजवान मुस्कुराने लगा और कहा, सुल्तान मुअज्जम, इस राज से पर्दा मैंने उस वक्त भी नहीं उठाया कि जब मुझे यकीन हो गया कि मुझे फांसी होने वाली है, लिहाजा मैं इस राज से कैसे पर्दा उठा सकता हूँ। तारीख में लिखा जाएगा कि इस नौजवान ने अपनी जान बचाने की खातिर राज से पर्दा उठा दिया। तो सुल्तान ने उसे कहा कि राजों पर पर्दा उस वक्त तक रहना चाहिए जब तक उनका मुनासिब वक्त न आ जाए। मुनासिब वक्त पर उन राजों से पर्दा उठ जाना ही बेहतर होता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात उस नौजवान की समझ में आ गई। तो उस नौजवान ने कहा, हुजूर, मैं एक राज इस राज के बारे में बताऊंगा। सुल्तान ने कहा, वह कौन सी शर्त है? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को उस नौजवान ने बताया, हुजूर, काजी साहब मेरे एक सवाल का जवाब दे दें तो मैं इस राज पर से पर्दा उठा दूंगा। तो सुल्तान ने कहा, आखिर ऐसा कौन सा सवाल है जो तुम्हें काजी साहब से पूछने चाहिए? तो उस नौजवान ने कहा, हुजूर, बेशक काजी साहब को याद हो या ना याद हो, मैं जानता हूँ कि मैं काजी साहब के पास तकरीबन 15 साल पहले अपने बनाए गए मदरसे में पढ़ता था और उस मदरसे में सैकड़ों की तादाद में तालिबा इल्म दीन की रोशनी में मुनव्वर होते। लेकिन हैरान कुन बात यह थी कि काजी साहब की तनख्वाह इतनी थी कि इससे काजी साहब के घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता। लेकिन इन मदरसे में पढ़ने वाले सैकड़ों तुलबा के खाने पीने, रिहाइश और लिबास का खर्चा काजी साहब खुद उठाते थे। हत्ता कि अगर मदरसे में किसी बच्चे को बीमारी लाहक हो जाती तो इसका इलाज भी काजी साहब अपनी जेब से करते थे। मैंने काजी साहब से कई मरतबा इस सवाल के बारे में पूछा, लेकिन काजी साहब ने मुझे बताने से इनकार कर दिया। मैंने काजी साहब को कहा, शायद आपको सरदार की तरफ से मदद मिलती है या फिर कोई और राज है। तो काजी साहब ने कहा, बेशक मुझे सरदार की तरफ से रकम देने की पेशकश की गई, लेकिन मैंने इसको ठुकरा दिया था। लिहाजा यह एक राज है और इस राज को राज ही रहना चाहिए। मैंने कई बार पूछने के बावजूद काजी साहब का चहीता तालिब इल्म होने के नाते काजी साहब से कई बार पूछा, फिर भी इस राज से पर्दा नहीं उठाया। तमाम मदरसे के तालिब इल्म हैरान होते कि आखिर काजी साहब इतने इखलास अदा करते हैं, और चंद एक तालिब इल्म में काजी साहब के ख़िलाफ़ गलत ख्याल भी थे। इन बच्चों का एक दिन का खर्चा और काजी साहब के 2 माह की तनख्वाह से भी ज़्यादा था, और यही राज आज तक राज रहा। अभी तक काजी साहब ने इस बात के बारे में किसी को नहीं बताया। अगर काजी साहब आज ये बता दें कि काजी साहब इन बच्चों के अखराजात की रकम कहाँ से लेते थे, तो मैं भी इस राज से पर्दा उठा दूंगा। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने काजी साहब की तरफ देखा तो काजी साहब सर झुकाए कहने लगे, बेशक मैं अपने ज़िंदा रहते हुए इस राज से पर्दा नहीं उठाना चाहता था, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि अब इस बात को तमाम लोगों के सामने आना चाहिए। काजी साहब ने कहा कि मैं बगदाद के शहर में एक मदरसे में तालीम हासिल करता था। मेरे माँ बाप बचपन में ही फौत हो गए, लिहाजा मैं अकेला था। मैं इस मदरसे में 6 दिन पढ़ता और एक दिन छुट्टी वाले दिन मजदूरी करके अपने 1 हफ्ते के खर्च का बंदोबस्त करता। वक्त यूं ही गुजरता रहा और इसी तरह निज़ाम ज़िंदगी चलता रहा। एक वक्त ऐसा आया कि 6 दिन मदरसे में पढ़ने के बाद जब मैं 7वें दिन मजदूरी करने के लिए बाहर गया तो अचानक बारिश शुरू हो गई और बारिश इतनी तेज़ हुई कि मैं उस दिन मजदूरी नहीं कर सका। मैं बड़ा परेशान हुआ कि अगले 6 दिन मैं कैसे गुजारूंगा। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था, लिहाजा भूख से निढाल होकर पानी पीकर मैंने वह 6 दिन गुजार दिए। इसी तरह 1 हफ्ता गुजर गया। अगले दिन मैं बहुत खुश था कि आज मजदूरी का दिन है, मजदूरी हो जाएगी तो फिर अगला मेरा हफ्ता अच्छे से गुजर जाएगा। लिहाजा जब मैं मजदूरी करने के लिए मजदूरों के चौक पर गया तो देखा कि वहाँ कोई भी वज़ीर, कोई भी ताजीर मजदूर लेने के लिए नहीं मौजूद था। मैं हर तरफ दौड़ा, बाज़ार में तमाम ताजरों के पास गया, लेकिन किसी ने मुझे मजदूरी पर नहीं लगाया और अब मैं मायूस होकर वापस लौट आया। मैं 1 हफ्ता भूख में गुजार चुका था, अब दूसरा हफ्ता भी भूख में गुजारने वाला था। 2-3 दिन तो मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारे, लेकिन अब भूख से गुजारा नहीं हो रहा था। मायूस होकर मैं घर से बाहर निकला और सोचा कि बाहर निकलकर गली मोहल्ले में जाता हूँ,
शायद कहीं से खाने पीने का बंदोबस्त हो जाए। मैं बाहर निकला तो एक गली से गुजर रहा था कि उस गली में मुझे एक थैली पड़ी हुई नज़र आई। दोपहर का वक्त था, सुनसान गली थी, कोई नहीं देख रहा था। मैंने वह थैली उठाई और सीधा घर आ गया। जब मैंने वह थैली को उठाकर देखा तो इसमें एक जवाहरात से बना हुआ हार मौजूद था। उस हार की चमक दमक को देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि यह हार बहुत कीमती है। लिहाजा मैं सोचने लगा कि आखिर इसके हकीकी मालिक तक यह कैसे पहुंचाया जाए। इसी सोच के आलम में बाहर निकला तो गली में एक बुज़ुर्ग आदमी ऊँट पर सवार था। उसके आगे उसका एक मुलाजिम रस्सी को पकड़े हुए यह आवाज़ लगा रहा था कि मेरे मालिक की एक थैली गुम हो गई है। इसमें एक कीमती हार था, अगर किसी के हाथ लगा हो तो वह वापस कर दे, उसको इनाम में 1000 दीनार दिए जाएंगे। जब यह खबर मैंने सुनी तो सीधा दौड़कर बाहर निकला और जाकर उस ऊँट की रस्सी पकड़कर चल रहे आदमी को घर ले आया और उस बुजुर्ग को कहा, हुजूर आप अंदर आ जाएं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं सिर्फ बुजुर्ग को अंदर ले गया और जाकर मैंने थैली उसके हवाले कर दी और उसके अंदर से हार निकाल कर देखा जो कि वैसे का वैसा मौजूद था। वह बड़ा खुश हुआ और कहा, यह हमारे लिए बहुत कीमती था, यह मेरे ख़ानदान की सबसे बड़ी निशानी थी, लिहाजा इसके बदले में मैं तुम्हें अपने 1000 दीनार का इनाम हासिल करो। मैंने बहुत मना किया कि यह मुझ पर फ़र्ज था और मैंने एक फ़र्ज पूरा किया, लिहाजा मैं इसके बदले में इनाम नहीं ले सकता। लेकिन उस बुज़ुर्ग ने मुझे ज़बरदस्ती 1000 दीनार देते हुए चला गया। मेरे पास बहुत बड़ी रकम आ गई थी। मैंने अपने खाने पीने का बंदोबस्त किया, अपने मालिक मकान का किराया दिया और मदरसे में मौजूद बाकी गरीब तलबा को भी इनमें से रकम तकसीम कर दी ताकि मेरी तरह और बच्चों को मुश्किल वक्त पेश न आए। वक्त गुजरता रहा। जब मेरी तालीम मुकम्मल हो गई तो मैं समंदर के किनारे पहुंचा ताकि कश्ती पर सवार होकर अपने शहर वापस चला जाऊं। शाम का वक्त हो चुका था। एक अनारी मल्लाह कश्ती पर मौजूद था। जब लोग उसके साथ सवार हुए, कश्ती भारी होने की वजह से कश्ती उसके काबू में न आई और कश्ती का फट्टा टूट गया। कश्ती डूबने लगी तो मैंने भी खौफ से आंख बंद कर ली और कश्ती के फट्टे को ज़ोर से पकड़ लिया। मुझे नहीं पता था कि बाकी मुसाफिर कहाँ गए। मैंने उस फट्टे को पकड़े रखा। अंधेरे में नहीं पता चला कि यह फट्टा कहाँ जा रहा है। वह फट्टा हिचकोले खाता खाता एक जजीरे पर जा लगा, फट्टे से उतरा और रेत पर जा गिरा। थोड़ी देर सांस बाहर होने के बाद मैं एक ढालवां जगह पर चढ़ा। देखा कि सामने एक बस्ती मौजूद थी और उसके साथ में एक मस्जिद भी मौजूद थी। मैंने वज़ू किया और उस मस्जिद में पहुंच गया। मैंने नमाज अदा की तो उस जगह पर कुरान मजीद मौजूद था। मैंने कुरान पाक पढ़ने लग गया। जब गांव के एक बुज़ुर्ग आदमी ने मुझे कुरान पाक पढ़ते हुए देखा तो उन्होंने कहा, हुजूर हमारी सारी बस्ती में कोई भी कुरान पाक पढ़ना नहीं जानता, लिहाजा अगर आप हमें कुरान पाक पढ़ाना सिखा दें, कुछ दीन की बातें बता दें तो आपका बहुत एहसान होगा। मुझे 2 वक्त की रोटी मिलती रही और मैंने गांव वालों को कुरान पाक पढ़ाना शुरू कर दिया। गांव वालों की नज़र में मेरी बहुत इज्जत थी और वह मेरा बहुत एहतराम करते थे। मेरी जवानी से भरपूर दौर था। एक दिन एक गांव का चौधरी मेरे पास आया और कहा, हमारे गांव में एक शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला बुज़ुर्ग रहता था, लेकिन अब वह इस दुनिया से जा चुका है। उसकी एक इकलौती बेटी है, उसके पास बहुत माल और दौलत है। अगर तुम उससे शादी कर लो तो तुम्हारी भी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी और उसको सहारा मिल जाएगा। मेरे मना करने के बावजूद मेरी शादी उस नौजवान लड़की से करा दी गई। वक्त गुजरता रहा और उस बस्ती में मैं बच्चों को पढ़ाता रहा, हत्ता कि उस बस्ती के अक्सर लोग कुरान पाक पढ़ना जान चुके थे। एक दिन हादसे में मेरी बीवी की वफ़ात हो गई तो उस बस्ती में रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। मैंने सारी दौलत उन तमाम गांव के गरीबों में बांट दी। अपनी बीवी की आखिरी निशानी के तौर पर मैंने गांव वालों से उस हार को अपने साथ ले जाने की इजाज़त चाही।
गांव वालों ने मुझे खुशी खुशी वो हार साथ में ले जाने की इजाज़त दे दी। यह वह हार था जो मैंने बगदाद की गली में उठाया था और उसके बदले में इनाम के तौर पर उस बुज़ुर्ग ने मुझे 1000 दीनार इनाम में दिए थे। और ये बेटी उसी बुज़ुर्ग की थी। जब मैं मिस्र में पहुंचा और मैंने सुनार को हार दिखाया तो इस हार की कीमत 5 लाख दीनार लगी। इतनी बड़ी रकम आने के बाद मैंने एक मदरसा बनवाया और इस मदरसे में गरीबों के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और इस हार की रकम ही से मैंने मदरसा भी तामीर कराया और इस हार की रकम ही से मैं बच्चों के तमाम अखराजात में सैकड़ों की तादाद में बच्चों को तालीम दी। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़ा हैरान हुआ और कहा कि इस दुनिया में जहाँ इतने बुरे लोग रहते हैं वहीं काजी साहब जैसे कितने मुअज़्ज़ज़ लोग भी रहते हैं। और इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसी वक्त हुक्म दिया कि काजी साहब को शाही काजी के तौर पर तैनात कर दिया जाए। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस नौजवान को कहा कि आप बताओ कि तुमने एक कत्ल किया, लेकिन एक कत्ल की सिफारिश एक वली अल्लाह बुजुर्ग ने क्यों की? आखिर तुम्हारे पीछे कौन सा राज है? तो उसने कहा, हुजूर, काजी साहब के मदरसे में पढ़ने के बाद मेरी दोस्ती गांव के 3-4 आवारा लोगों से हो गई, तो मैंने काजी साहब की सारी दी गई तरबियत को भुला दिया और मैं भी उनकी तरह गली मोहल्ले में शराब पीता, सारा दिन आवारा गर्दी करते और रात को चोरी करके एक बूढ़ी औरत को पैसे देते और वह गांव के किसी न किसी लड़की को बहला फुसलाकर मकान में ले आती और हम वहां उसके साथ सारी रात तमाम दोस्त मिलकर जुर्म करते। और इस काम को करते 2 साल गुजर चुके थे। एक दिन हम लोग शराब में धुत अपने कमरे में मौजूद थे कि बूढ़ी औरत एक नौजवान हसीन और जमील लड़की को लेकर आई। वह लड़की जैसे ही हमारे मकान में दाखिल हुई तो हमको शराब में धुत देखकर उसकी चीख निकल गई और वह बेहोश हो गई। मुझे उस लड़की में एक अजीब सी कशिश नजर आई। मैंने उसी वक्त अपने दोस्तों को इस लड़की से दूर किया और उस बूढ़ी को कहा कि इस लड़की को अंदर ले जाओ। बूढ़ी औरत ने उसको कमरे में लिटा दिया। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि मैं उस लड़की को छूने से गुरेज कर रहा था। मैंने उस लड़की को होश में लाने की पूरी कोशिश की और जैसे ही वह होश में आई तो उसने मुझे अपनी माँ की कसम देते हुए कहा कि मैं गरीब मजदूर की बेटी हूँ। यह बूढ़ी औरत मुझे इस बहाने ले आई है कि इसके घर में खाना पड़ा हुआ है और वह खाना मैं तुम्हें दे दूँगी और तुम जाकर अपने इस बीमार बाप को खिलाना। और मैं अपने बीमार बाप का पेट भरने इस लालच में अंदर आ गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर तुम शराब की नशे में बैठे हो। और जैसे मैंने तुम्हें देखा तो मुझे तुम्हारी नीयत के बारे में पता चल गया और इसी खौफ की वजह से मैं बेहोश हो गई। और उसने मुझे कहा कि अगर आज उन्हें लड़कों ने मुझे छू लिया तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊंगी और उसके बाद भी मेरी रूह को सुकून कभी नहीं मिलेगा। सारी ज़िंदगी मुझे किसी नामरहम ने नहीं छुआ, लेकिन अगर आज मेरे साथ कुछ भी बुरा हुआ तो मैं क़यामत तक तुम सबको माफ़ नहीं करूंगी। उस लड़की की बात सुनकर मुझे बहुत खौफ आया और मैं बाहर निकला। अपने दोस्तों को कहा, इस लड़की को हम हाथ तक नहीं लगाएंगे, वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। मेरे दोस्तों ने समझा कि शायद यह खुद इसके साथ गुनाह का इर्तिकाब करना चाहता है और हमें इससे दूर रखना चाहता है। लिहाजा उन्होंने मुझे कहा कि या तो हमें इस लड़की से जिना करने दो या फिर कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे लाख मना करने के बावजूद इस कमरे की तरफ मेरे दोस्त जाने लगे तो इसी वक्त मैंने खंजर निकाला और इनमें से एक दोस्त को मैंने कत्ल कर दिया। जब मैंने एक को कत्ल किया तो बाकी इस डर से वहाँ से भाग गए और मैंने उस लड़की को अपने साथ लिया और उसको बाहिफाजत अपने घर पहुँचाया। जब इस बात की खबर काजी साहब को लगी तो मुझे काजी साहब के सामने पेश किया गया और कत्ल के जुर्म में मुझे सजाए मौत सुनाई गई। जब यह बात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सुनी तो सुल्तान बड़ा हैरान हुआ और कहा कि बेशक जब अल्लाह ताला इंसान को सीधा रास्ता दिखाना चाहता है तो फिर चाहे इंसान कितना भी गुनहगार क्यों न हो वह सीधे रास्ते पर आ जाता है। और इसके बाद तमाम लोगों को इस राज का पता चल गया कि कातिल की रिहाई का हुक्म एक बुज़ुर्ग ने सुल्तान को ख्वाब में क्यों दिया और इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनको बाइज्जत रिहा कर दिया।
اور پھر تاریخ نے لکھا ہے کہ قاضی صاحب نے اس مزدور کی بیٹی کے ساتھ اس نوجوان کا نکاح کروا دیا اور اس کے بعد وہ شاہی قاضی سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت کرنے لگا۔ میرے محترم ناظرین کرام، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو اسے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی اگلے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ان لوگوں تک بآسانی پہنچتی رہے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔